Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic will be spectrophotometer and the sources of radiation in the spectroscopy. Before we start, now as क्योंकि बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि थोड़ा सा linguistically it should be some Urdu and English kind of based kind of a topic presentation. तो मैं थोड़ा सा पेज बीच में उर्दू भी इस्तेमाल कर लेता हूँ so that the things will get at ease. Fine. तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज बल्कि एक ही टॉपिक है that is spectrometer. तो what basically the spectrometer is? जैसे हमने पहले भी कहा है in the spectroscopy we make use of electromagnetic radiation. यहाँ पे लिखेंगे we make use of electromagnetic radiation of different frequencies for different purposes, and this we interact with the matter. Now this interaction, what this interaction actually does, we are making use of this interaction to interpret the structure of the molecule. Fine. So for whole this process, the interaction with the matter, of radiation the matter, and then there will be the excitation, the excitation process. Now this whole process, it's being analyzed, it's been recorded through the instrument. Now this records the instrument, and that instrument is called as a spectrometer. Or it's going to be called a spectrophotometer. Basically, there's some difference in some of the techniques. We have spectrometer, we can use spectrophotometer, but for the moment, let us say they are not the same. So the instruments which we use in the spectroscopy, they're called spectrometers. So we'll not go deep into it. हम उसमें अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो थोड़ा सा जो क्लास है that is हम एग्जाम को ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा सोच रहे हैं. तो स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे. दैट इज नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सोर्स. यहाँ पे लिखेंगे वे दैट इज सोर्स, फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज सोर्स. So yours. So that is the source. We can use S here. Source. One of the important components होता है that is source. अब ये source होता क्या है? जैसे in the last class हमने देखा था कि for example if you are dealing with the if you're dealing with the radio waves, so radio waves say there will be change in there will be transition in the nuclear energy levels. तो उस टेक्निक को हमने बोला था NMR. इसी तरह से हमने बोला था if you are using microwaves, fine. इससे क्या होता था कि मॉलिक्यूल में रोटेशन वाला जो कंपोनेंट था that was getting affected, or there was a transition among the rotational energy levels. So this was called as rotational spectroscopy, rotational or microwave spectroscopy, fine. इसी तरह से if you are using infrared radiations, तो हमने बोला था it leads to the change in the vibration energy levels. So it was called as IR spectroscopy or infrared spectroscopy. Right? तो
ये तो हमारे मेन 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी है विच आर एक्चुअली इंक्लूड इन द सिलेबस, सो विल नॉट गो बियॉन्ड दिस नाउ, स्टिक टू दीज थिंग्स। ठीक, इसका मतलब है अगर इफ यू आर यूजिंग दीज रेडियो वेव्स, अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं या वी आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमारे पास जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होना चाहिए दैट शुड बी रेडियो वेव्स। इसी तरह से इफ यू आर स्टडिंग दिस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हमारे पास माइक्रोवेव सोर्स होना चाहिए जहां से रेडिएशन जो आएंगी दैट विल बी ऑफ द रेंज ऑफ माइक्रोवेव, द वेवलेंथ शुड बी इन द माइक्रो रीजन। इसी तरह से वी नीड इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इसलिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है in the spectrophotometers or spectrometer, that is the source of the radiations. अब which source will use to get which kind of radiation, that we'll discuss later. थोड़ा सा पहले हम यहाँ से we'll stick the first component, that our first component should be source. तो हमारा पहला component spectrophotometer में होना चाहिए source. Next, अब source से जो radiation निकल जाए, फाइन, सो दैट विल, एक तो यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि ये रेडिएशंस है ना, ये हम जनरेट करते हैं यहाँ इन द सोर्स, डिफरेंट मटेरियल से भी जनरेट करते हैं। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज रेडिएशंस किस पे फॉल हो जाएंगे, सैंपल पे, किस टाइप का सैंपल है, लिक्विड है, गैस सैंपल है, सॉलिड सैंपल है, जो भी आपका मटेरियल है इसको आपको एनालाइज करना हो, जिसमें आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना हो या समटाइम्स आपको क्वांटिफाई करना हो, तो दैट्स कॉल्ड अ सैंपल। फाइन, तो यहाँ पे थोड़ा सा सैंपल के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे सिलेबस में, एनएमआर के लिए हम यूजुअली यूज करते हैं एक लॉन्ग ट्यूब। एक ऐसे लॉन्ग ट्यूब होता है, इसमें हमारा सैंपल यूजुअली इन द लिक्विड फॉर्म डिजॉल्व करते हैं सैंपल। उसके बाद जो इसका विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट वी शुड यूज, वो हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली इन दिस चैप्टर ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऐसे सैंपल प्रिपरेशन, इस तरह से जब आपको माइक्रोवेव्स होता है तो माइक्रोवेव्स में भी हमारा वी हैव अ माइक्रोवेव टाइप ऑफ सेटअप, उसमें हम सैंपल रख लेते हैं। आईआर में हम प्लेट्स भी बनाते हैं या लिक्विड भी यूज करते हैं आईआर में, ताकि वो सैंपल लिक्विड इवापोरेट हो जाए और वो सैंपल होल्डर में हमारा प्लेट रहता है। तो we need the sample is your material which you want to analyze। उसके बाद और एक कंपोनेंट है दैट इज मॉड्यूलेटर, like this मॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर आपने सुना होगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में भी, ये मॉड्यूलेटर क्या करता है, इट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में कभी कभार ये होता है कि यहाँ से जो रेडिएशन आती है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आती है, उनको जो है यहाँ पे मिक्स हो जाता है, यहाँ से एक कैरियर कंपोनेंट मिक्स हो जाता है, उससे दैट दैट रीच टू द डेस्टिनेशन। तो इस यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आती है, यहाँ से सैंपल से जो हमारा ये जो सिग्नल निकलता है, उसको प्रॉपरली पहुंचाना कहाँ, डिटेक्टर तक, वो यूज मॉड्यूलेटर। तो उसके डीप में हम नहीं जाएंगे। ये करता है क्या, बेसिकली इट हेल्प्स इट इट मेक्स दिस सिग्नल्स टू रीच टू द डिटेक्टर विद हेल्प ऑफ द कैरियर कंपोनेंट। फाइन, बिकॉज की खुद की फ्रीक्वेंसी बहुत कमजोर होती है। तो उसके बाद हमारे पास होता है मॉड्यूलेटर के बाद, याद रहे कि मैं यहाँ पे मेजर कंपोनेंट डिस्कस कर रहा हूँ। मॉड्यूलेटर के बाद हमारे होता है एक डिटेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सिग्नल सैंपल से पास होके मॉड्यूलेटर से डिटेक्टर, अब सिग्नल पहुंच जाती है डिटेक्टर तक। तो डिटेक्टर वो जो यहाँ से पास आउट होकर जो सैंपल सिग्नल निकलती है सैंपल से, वो डिटेक्ट करता है बाय द डिटेक्टर। और डिटेक्टर ही तो फाइनली डिटेक्टर क्या होता है, सिग्नल जाती है रिकॉर्डर पे।
सिग्नल जाती है रिकॉर्डर पे और रिकॉर्ड करता है स्पेक्ट्रम रिकॉर्डर। सो व्हाट दिस रिकॉर्डर डज है, रिकॉर्डर के साथ पूरा एक सेटअप कनेक्ट होता है, एक पीसीबी से सेटअप, तो हमें निकलता है एक स्पेक्ट्रम। तो रिकॉर्ड करता है एक स्पेक्ट्रम जिससे हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। तो मान लीजिए इट्स टाइप ऑफ पीसी यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से एक स्पेक्ट्रम आता है एंड सो ऑन। तो इट्स सम एक्स वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस। तो ये इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अगर बहुत सारे हो तो वी कॉल इट स्पेक्ट्रा, प्लूरल। तो प्लूरल इज स्पेक्ट्रा। तो ये तो हमारा बेसिक होता है इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट। वी हैव अ सोर्स, उसके बाद वहाँ से रेडिएशन जनरेट होता है जिस टाइप की हमें ज़रूरत हो। फॉर एग्जाम्पल NMR हो तो रेडियो वेव्स, सोर्स भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। माइक्रोवेव हो तो ऐसा ही सोर्स होना चाहिए। IR हो तो ऐसा ही सोर्स। फिर वहाँ सैंपल पे जो है इंसिडेंट होता है, फिर वहाँ से जो आउटपुट निकलता है दैट गोज टू द मॉड्यूलेटर। वहाँ कैरियर कंपोनेंट मिक्स होकर एक रेडिएशन होती है सो दैट इट रीच सूटेबली टू द डिटेक्टर। और डिटेक्टर के बाद ये सिग्नल को डिटेक्ट करके इट गिव अ सिग्नल टू द रिकॉर्डर। और रिकॉर्डर बाज़िफ्त विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर हमें एक एक्स वर्सेस वाई स्पेक्ट्रा देता है। उसी स्पेक्ट्रा से, फ्रॉम दैट स्पेक्ट्रा वी रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, the type of bond, the type of molecule, the nature of the nucleus, the stereochemistry sometimes, and the single bond character, double bond character in the molecules, or sometimes the polarity of the molecules. So वो हम रिट्रीव करते हैं इसी ग्राफ से वो इंफॉर्मेशन। सो दैट वो हम थोड़ा सा देखेंगे and we will individually deal with these techniques. Fine. तो ये तो हो गया the basics of the spectrometer और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लगे। मैं यहाँ पे दोबारा स्लाइड दिखा लेता हूँ। अगेन यहाँ से इस व्यू से। सो दिस इज, आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स में और एक चीज़ होती है दैट we have a common practice to use the Fourier transform technique. So nowadays the instruments use the Fourier transform technique. ये भी एक टर्म याद रख लीजिए, Fourier it's a mathematical process, Fourier transform technique. Nowadays ये particularly the NMR and FTIR, इसमें एक तो NMR में और IR में, तो उसको बोलते हैं FTIR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये वाली टेक्निक हम यूज़ करते हैं आजकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसमें अंदर जाना नहीं, बिकॉज इट्स मैथमेटिकल प्रोसीजर। तो उससे ये हुआ है कि नाउ वी हैव अ गुड सिग्नल टू द नॉइज रेशियो। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट impacts of this technology is that we have now good signal to the noise ratio. Now this is important, good signal to the noise ratio. What do you mean by signal to noise ratio? Signal का मतलब है that the ये signal means which is of our interest, ये वाले signal। लेकिन sometimes you have those background में भी थोड़ी सी चीज़ें आती रहती है, उसको बोलते हैं noise। So that can be due to the some disturbance, that can be due to the impurity। तो वो जो noise है, that if it is less, our signal is more, we can interpret our data clearly, we'll get better information। Fine। इसलिए ये जो noise component कम होता है। तो by using this Fourier transform technique in the spectroscopy, now we're getting good signal to noise ratio। That means we're getting better results of our sample and after analysis। So this has given us one of the important advantages of Fourier transform technique is we're getting better results। again यहाँ से दिखा लेता हूँ मैं। This is our spectrophotometer। fine। तो इसमें ये कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हो।
nowadays we use Fourier transform technique. It's a mathematical procedure. Use good signal to the noise ratio, or SNR. So this is all about the basics of the spectrometer which we use. यहाँ पे और एक चीज़ जो मैं डिटेक्टर के हवाले से बोल रहा हूँ, क्योंकि डिटेक्टर जो इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इसका काम क्या होता है. डिटेक्टर जो है इट कंटेन्स, मैंने यहाँ से बोला जो रेडिएशन यहाँ से दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो डिटेक्टर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू electrical this is converts the spectral radiation into the electrical signal. Spectral radiation into the electrical signal. तो यहाँ से जो रेडिएशन आ गई थी दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. फिर सैंपल में पास, फिर यहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल गई. फिर यहाँ से जो रेडिएशन आ रही है मॉड्यूलेटर से विद हेल्प ऑफ द कैरियर कंपोनेंट. फिर यहाँ पे दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन gets converted to the electrical signal. क्योंकि हम जानते हैं हमारा पीसी जो है वो दैट डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे आती है रिकॉर्डर पे एंड वी आर गेटिंग दिस थ्रू पीसी. तो डिटेक्टर व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो यहाँ से आती है ईएम वेव टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड दैट हैज बीन डिटेक्टेड बाय द finally recorded with a recorder. And recorder क्या होता है, just understanding के लिए computer based system होता है. Fine. So this is all about the again I am showing it here. A view completely the extra. This is the basics of spectrometer. Now a very important component, that the source of radiation, very very important. Source of radiation. The source of radiation. The source of radiation in spectroscopy. ये बहुत important question है. Spectroscopy दोबारा नोट कर लीजिए, ये बहुत ही important है. कौन सी रेडिएशन हमें चाहिए, तो वो कौन सा सोर्स हम यूज़ करेंगे दैट विल जनरेट द रेडिएशन अकॉर्डिंगली. अगेन जैसे यहाँ पे हमने लिखा, अगर हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टडी कर रहे हैं, हमें रेडियो वेव्स चाहिए, तो रेडियो वेव्स के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करें, माइक्रोवेव्स के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करें, इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करें. तो स्टार्ट फ्रॉम हियर. नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल फॉर infrared region. Number 1, if we want the radiations of, यहाँ पे लिखेंगे हम radiation, which type of radiation we need, और यहाँ लिखेंगे हम source. यहाँ लिखेंगे हम source. Fine. हेड में अगर हम रेडिएशन हमें चाहिए इंफ्रारेड आया रेडिएशन, for example number 1 we need IR radiation. So for that, we'll require a heated ceramic filament coated with rare earth oxides. It's called a Nernst emitter. Nernst emitter. तो हमारे साथ जो सोर्स है that will be, ऐसे दिखाएंगे हम, source will be Nernst emitter.
So the source for the infrared radiation is nernst emitter. अब ये nernst emitter होता क्या है basically? This nernst emitter is basically it's a heated ceramic filament. तो यहाँ पे ये भी important लिखते हैं, it's a heated ceramic filament. Heated ceramic material, huh? ceramic filament. अब वो जो फिलामेंट होता है उसके ऊपर कोटिंग होती है ऑफ रियर अर्थ ऑक्साइड्स, कोटेड विथ रियर अर्थ एलिमेंट जो होती है उनकी ऑक्साइड्स, रियर अर्थ ऑक्साइड्स. हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं रियर अर्थ एलिमेंट पीरियड टेबल्स में, उनकी ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल ये एक फिलामेंट है, उसके ऊपर से एक कोटिंग होती है. वो जो कोटिंग होती है दैट कोटिंग इज ऑफ रियर अर्थ ऑक्साइड्स. उसको जब हम हीट करते हैं तो उस हीटिंग से वी गेट द रेडिएशंस, दे आर द इंफ्रारेड. द रेडिएशंस हैव अ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर 1. सो फॉर द जनरेटिंग आयर रेडिएशंस आवर सोर्स इज नर्निस्ट फिलामेंट. वो क्या होता है, हीटेड सेरामिक फिलामेंट होता है उसमें, और दैट्स बीन कोटेड विद रियर अर्थ ऑक्साइड्स. फाइन, वहां से हमें मिलती हैं आयर रेडिएशंस. तो दिस इज सोर्स नंबर 1. नंबर 2. सो नंबर 2 फॉर एग्जांपल मैं यहाँ उसके बाद से आयर हो गए यहाँ पे. फाइन, और यहाँ पे हम बोल गए थे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज यूवी विजिबल, थोड़ा हम बोल गए थे. सो यहाँ पे जो रेडिएशन इज दैट्स अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस, उसको बोलते हैं यूजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और रेडिएशन होती है अल्ट्रावायलेट और विजिबल. तो विल राइट डाउन अल्ट्रावायलेट के लिए our source is a hydrogen discharge lamp. So for ultraviolet, if you want ultraviolet radiations, ultraviolet, our source is important, a hydrogen discharge lamp. So UV radiations के लिए our source is hydrogen discharge lamp, HDL. बहुत important. इस तरह से if you need visible radiations, वो radiations which are जो हमारा आई जो है इसको परसीव करता है, तो visible radiations के लिए we need a tungsten filament, a tungsten फिलामेंट. टंगस्टन जो हमारा एक जो है मेटल है, तो उसी का एक फिलामेंट चाहिए, वहीं से हम विजिबल रेडिएशन जनरेट करते हैं. सो हम डीप में तो नहीं जाना है हाउ वी जनरेट दैट, बट एक जस्ट याद रखना है कि विच टाइप ऑफ सोर्स वी यूज एंड दैट रेडिएशन गेट. सो फॉर दैट वी यूज टंगस्टन फिलामेंट. अगेन मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ. For that we use tungsten. So यहाँ पे T and tungsten filament. Fine. So IR के लिए nernst emitter स्पेशली किया ceramic filament, उसके ऊपर कोटिंग होती है रियर अर्थ ऑक्साइड्स. UV के लिए हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, विजिबल के लिए टंगस्टन फिलामेंट. उसके बाद हमारे पास जो बचता है दैट इज रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स. ये दो इम्पोर्टेंट है. उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हमें माइक्रोवेव्स के लिए यूज़ करें तो वी यूज़ गन डायोड. माइक्रोवेव्स के लिए गन डायोड, माइक्रोवेव्स. सो वी हैव टू जनरेट माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव. तो ये कहाँ से मिलेगी हमें, गन डायोड. उसके लिए सोर्स है गन डायोड, माइक्रोवेव के लिए. और हमारे पास जो बचा लास्ट वन दैट इज रेडियो वेव्स. तो रेडियो वेव्स के लिए बड़ा सिंपल है, दैट विल टेक एन इलेक्ट्रिकल करंट एंड देन एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल. इन अ कॉइल देन oscillating electric current
oscillating electric current through a wire. तो बड़ा आसान है इसके लिए, रेडियो वेव्स. So for the radio waves, जो हमें ज़रूरत होती है इन दी NMR, तो ये oscillating electric current, oscillating electric current through some wire. फाइन, एक वायर से, एक कॉइल्ड वायर है, तो यहाँ से जो है ऑसिलेटिंग करंट पास करती है वायर से. जब ऑसिलेटिंग करंट यहाँ से पास होगी, यहाँ से जो रेडिएशन जनरेट होंगी उनकी वेवलेंथ होगी फॉलोइंग इन द रेडियो वेव रीजन. तो ये तो होगी, अगेन मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, द डिफरेंट सोर्सेज यूज्ड. जब हम यूज़ करते हैं different sources of radiation in the spectroscopy. For example, रेडिएशन में ये हो गया सोर्स, ऊपर से हेडिंग. उसके बाद IR के लिए नर्स्ट एमिटर. UV, for UV we require hydrogen discharge lamp. For visible we require tungsten filament. For microwaves we have gun diode, and radio waves we have oscillating electric current. So again आप से देख सकते हो यहाँ से, these are the basic techniques we have to read. For example, you have to deal NMR spectroscopy, rotational spectroscopy, IR spectroscopy, visible spectroscopy. इसलिए मैंने यही वाले sources वहाँ पे use किए. So we'll not go into X-rays and other things. This is the और एक important है, that's ये जो सिलेबस में है शायद, ये माइक्रोवेव्स के लिए गन डायोड के पास कैलिस्ट्रॉन भी यूज़ करते हैं. कैलिस्ट्रॉन हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो यूज़ कैलिस्ट्रॉन आल्सो फॉर जनरेटिंग माइक्रोवेव्स, गन डायोड और एंड कैलिस्ट्रॉन. तो मैं यहाँ दोबारा विल कोट द बोर्ड हियर. दिस आवर टॉपिक. सो वी डिस्कस द सोर्स, spectrophotometer basic setup, and the sources of radiation. और कोई क्वेश्चन you can ask. So this is all for the day. Thank you.